Good morning students of class 9. This is your teaching video for the subject science and we will take physics revision in this particular video. So student, we have discussed about motion of objects in first chapter and video is for revision purpose. So firstly you should know all the definitions which I have told you. The definition of distance, one linear definitions should be remembered by you. The definition of distance, the definition of displacement, and after that we start relating these quantities, distance to speed and displacement to velocity. The main difference between distance and displacement is of vector and scalar quantity. Distance is defined as the total length of path. If you are going in the east for 2 or 3 kilometers, 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer. After that you start moving in north for 4 kilometers. 1, 2, 3, 4. This is north. So the distance covered by you will be the total length of path, that is 3 km plus 4 km is equal to 7 km. But displacement definition is also very important and has been asked. The displacement is minimum distance between initial and final point. जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु होगा इसके बीच की आपको मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करनी होगी. द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. तो बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं इसमें, सर्कुलर मोशन का और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का. न्यूमेरिकल जब बनता है तो आपको बस इसी बात का ध्यान देना है कि डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. So student, let us take one example. There is a circular part of radius 7 meter. There is a circular part of radius 7 meter, and one student or player is taking round of this 7 meter circular part. So find his displacement and distance आफ्टर हाफ साइकिल. आधे चक्कर के बाद आफ्टर हाफ साइकिल आपको दो चीजें बतानी है, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द प्लेयर. द डिस्टेंस विल बी लेंथ ऑफ पाथ हाफ ऑफ द साइकिल, डिस्टेंस विल बी हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, दैट इज हाफ ऑफ 2 pi r. Distance will be half of 2 pi r. This path, ये जो मार्कर से आपको दिखाया जा रहा है ये रास्ता होगा half of 2 pi r. But displacement is minimum distance between initial and final point. Hence the displacement will be equal to this line, and this line is case of circle is called diameter. So displacement is equal to diameter and that is 2r. तो अब आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो r की जगह 7 और आपके आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, आंसर्स आपके आना शुरू हो जाएंगे. फॉर फाइंडिंग स्पीड और वेलोसिटी यू शुड नो द फॉर्मूला. द फॉर्मूला फॉर स्पीड इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम बिकॉज इट इज ए scalar quantity. Without direction, scalar quantity is speed. This is also without direction, distance. This is scalar. Displacement is vector. Displacement is vector. Hence, velocity will also be a vector. तो यही सब क्वेश्चंस आपसे 1 मार्क में फिल इन द ब्लैंक में पूछे जाते हैं, याद रहना चाहिए आपको. Vector velocity is defined as displacement upon time. Displacement upon time. Okay.
So remember the formulas also with the nature of physical quantity, that the given physical quantity is vector or scalar. So before going further, we will talk about acceleration. Acceleration. What is acceleration? Acceleration is given as time rate of change in velocity, या फिर change in velocity divided by time. So change in velocity is something initial minus final, that is v minus u, and v minus u upon t is a. तो यहीं से फिर आपके फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की शुरुआत हो जाती है. फर्स्ट इक्वेशन आएगी और उसके बाद हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करेंगे. तो रिवीजन में आपको ये ध्यान रखना है, ऑनलाइन टीचिंग का ये फायदा है कि आपको अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं आती है तो आप उसी वीडियो पे वापस जाइए जब मैंने क्लास में फर्स्ट टाइम आपको पढ़ाया था, तो आप रिवाइज कर सकते हैं. देन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन वेरी मोस्ट है, ये एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा बार आया है. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से भी आपको बताया गया है, समझाई गई है चीज़ें, तो ग्राफिकल मेथड से बिल्कुल तैयार करके रखनी है चीज़ें. इनमें से कोई भी एक डेरिवेशन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा जब रिटन एग्जाम्स होंगे. अभी इस एग्जाम की बात नहीं हो रही है, ये जो 8 to 10 मार्क्स का होना है आपका 1 मार्क्स वाला, इसकी बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है फाइनल एग्जाम्स की. तो तैयारी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपका रिटन टेस्ट लिया जाए या फिर MCQs आपसे पूछे जाए, आंसर तुरंत आ जाए. ठीक है, तो ये सभी फॉर्मूला आप याद कर लीजिए. एक्सीलरेशन इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. एक्सीलरेशन भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि वेक्टर की कैटेगरी में आएगी और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो कि फोर्स की डायरेक्शन हो. तो क्लियरिटी से आप चीज़ों को सुनते जाइए, अपने मन में बैठाते जाइए, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आती जाएंगी. अगर किसी ने नहीं पढ़ा है ये पहले से, तो पिछले वीडियोस में जाके प्लेलिस्ट में वो बिल्कुल देख सकता है. ऑनलाइन टीचिंग का ये फायदा है. दूसरा एक क्वेश्चन बताइए, एक ऐसे डायग्राम गिवन है आपको ट्रायंगल की फॉर्म में. यहाँ पे 3 किलोमीटर सेम है और यहाँ पे 4 किलोमीटर है. A to B, B to C ये यात्रा हुई है. तो डिस्टेंस सबको क्लियर है, 7 किलोमीटर. डिस्प्लेसमेंट कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बच्चों क्या है, पाइथागोरस थ्योरम होती है. दैट पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट दिस हाइपोटेनस स्क्वायर साइड अपोजिट टू 90 डिग्री AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. H स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस B स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर. दिस AB square is 4 square plus BC square is 3 square, 4 square is 16, 3 square is 9, 16 plus 9 25, AC square is 25 and AC is under root of 25, AC is 5 kilometers and the displacement will be 5 kilometer. Okay, पाइथागोरियन ट्रिपलेट था, तीनों चार में 5 समझ गए होंगे जो लोग कई बार पाइथागोरस ट्रिपलेट या पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज कर चुके हैं. स्टूडेंट्स क्या होता है कि 1-2 महीने का गैप आ जाने का हम लोग चीज़ों को भूलने लगते हैं. इस बार गैप थोड़ा लंबा हुआ है, तो आप छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान से सुनिए ताकि आपको पूरी मेमोरी आपकी वापस आ जाए. एक और ये सर्कुलर मोशन का बना लीजिए, फिर से रेडियस 7 मीटर ले लीजिए, लेकिन अब की बार आपको 3/4 साइकिल या 1/4 साइकिल का फाइंड करना है. What will be its distance and displacement after 1/4 of cycle? जल्दी से कैलकुलेट करिए, वीडियो पॉज करके 2 मिनट ट्राई करिए, फिर आंसर मिलाना. 1/4 ऑफ साइकिल में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बतानी है, जबकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है. सो आफ्टर 1/4 ऑफ साइकिल ऑब्वियसली द डिस्टेंस कवर्ड विल बी दिस आर्क एंड दिस आर्क इज 1/4 ऑफ दिस 2 pi arc. So distance is equal to 1/4 of 2 pi r.
डिस्टेंस इज 1/4 ऑफ 2 पाई आर। सॉल्व कर लेना इसको। पाई इज 22/7, यहाँ पे 2 है, आर इज गिवन 7, 11 मीटर। द डिस्टेंस कवर्ड ऑन दिस curved path will be 11 meters, that is 1/4 of 2 pi r whole circumference. R is 7 meter given, and displacement will be this line, the shortest distance between initial and final point, that is AB. So here again this is right angle triangle, the whole angle is of 360, so 1/4 angle will be 90 degree, and we will apply Pythagoras theorem to this triangle AOB. In triangle AOB, the side opposite to 90 degree is hypotenuse, that is AB square, and is equal to OA square plus OB square. 7 square plus 7 square, 49 plus 49, 98, and AB will be under root of 98, that is 49 into 2, so answer is 7/2. आंसर है 7/2। तो ये कैलकुलेशन आप करना। कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आती है, वो आपकी छोटी सी समस्या है, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगी। आप इसका आंसर लिख लीजिए 7/2 मीटर्स। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिवीजन लगातार करते रहिए, और जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया उसकी वीडियो प्ले लिस्ट से खोल के देखिए। थैंक यू।